Hello everyone, this side Abhishek here from Gajera Trust. I welcome you all. So I am here to teach you about coding. But before starting, let us understand why coding. So, coding is a basic literacy in the digital age, and it is also important for the kids to understand and to work with them. Having children learn about the coding at this young age prepares them for the future. This coding helps children not only with the communication but also with the creativity, maths, writing, and a self-confidence. So thereby, we at Gajera are been working continuously to provide one of the best education for our kids. And thus, in today's session, we will be working on a Scratch, which is a visual block based programming language where you can not only create your own interactive stories but also games and some animations. As you all know that the coronavirus has made a world on storm and every individual is fighting against corona. So thereby keeping this thing in mind, we have decided to create a game on a basis of corona theme. Before moving forward, I would like to make an announcement that we have another session on 25th of April also, a design a mobile app which is been mentioned on the screen. Same time, same page. So let's back. Moving to the back screen towards the presentation further part. So on the basis of corona, we are going to make this project, and this is what the screen I have put up here. This is what the project we are going to make, and with me you will be also working. So you will get an experience about how to design this project, how to add all these sprites we call in Scratch, how to make this game more interesting and all. Moving forward, so today's agenda, what we will be going to do is, first, what is exactly Scratch? How to use a Scratch? How to use online editor, our today's project, what exactly we are going to do coding in today's project, and after implementing the code and executing it, what is the exact output we will be getting. Last but not the least, what are the advantages of Scratch. So first, what is Scratch? As I told, that it's a visual block based programming language which enables an individual to program the interactive stories, games, animations. So basically Scratch एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम स्टोरीज ही नहीं बट गेम्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग एनिमेशंस के साथ. एंड एज फार एज द चिल्ड्रन अगर हम कंसिडर करें तो वो अपने क्रिएटिविटी से, अपने इमेजिनेशन पावर से स्क्रैच में कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को ले सकते हैं और कैसे उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हमें स्क्रैच में देखने मिलता है. द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू यूज स्क्रैच. सो देयर आर टू टाइप्स, वन ऑनलाइन एडिटर और दूसरा है ऑफलाइन एडिटर. ऑनलाइन एडिटर में ये जो लिंक मैंने मेंशन की है scratch.mit.edu, जब आप इस लिंक पे जाते हो तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है. एंड सेकेंड, scratch.mit.edu/scratch टू डाउनलोड. अगर आप ये लिंक पे जाते हो तो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के बाद जो भी पेरिफेरल डिवाइस है आपका, आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज़, मैक, लिनक्स, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर सिलेक्ट करना होता है एंड स्क्रैच को डाउनलोड करना होता है. सो
क्विकली मूविंग टुवर्ड्स आर स्टार्टिंग प्रोसीजर, तो हम ऑनलाइन एडिटिंग में स्क्रैच को वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे देखते हैं। न्यू टैब एंड आई विल टाइप हियर, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मेरा लिंक, दैट इज scratch.mit.edu एंड एंटर। तो मेरा ऑनलाइन एडिटिंग का पेज आ जाएगा। दिस इज व्हाट द पेज इज। बट ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। जस्ट मेरा लॉगिन है यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अकाउंट को बनाया जाता है। सो आई विल जस्ट फर्स्ट साइन आउट माई अकाउंट। सो एज आई सेड इन द प्रेजेंटेशन, हमें ज्वाइन करना होता है। सो आई विल जस्ट ज्वाइन। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना पड़ता है एंड हिंट के लिए डोंट यूज द रियल नेम, वो एक हिंट दी गई है। वॉट एवर यूजर नेम आपको जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूजर नेम डाल देता हूँ। वॉट एवर यूजर नेम आपको जो भी पुटअप करना है। देन पासवर्ड, यूजर नेम टेकन ऑलरेडी, तो आपको ऐसा एक यूनिक यूजर नेम डालना होगा जो कोई लिया नहीं होगा। अगर मैं ये डालूं, लेट्स सी, ये यूजर नेम किसी ने नहीं लिया है तो मैं ये ले सकता हूँ। पासवर्ड आई विल पुट अप, कंफर्मेशन पासवर्ड, एंड उसके बाद आप शो पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हो इन केस यू हैव फॉरगॉट कि आपने कंफर्मेशन पासवर्ड सही डाला है कि नहीं। नेक्स्ट, सेव भी कर सकते हो। आई एम श्योर गाइज आप मेरे साथ कॉप अप कर रहे हो एंड आपने भी अकाउंट का स्क्रीन ओपन कर दिया है एंड आप भी अकाउंट ज्वाइन कर रहे हो। सो लेट्स मूव ऑन। एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक आप साइन इन नहीं करोगे हमारा आगे का एक भी एक्टिविटी प्रोसीजर हम फॉलो नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई वी नीड टू साइन इन फर्स्ट। कंट्री सेलेक्ट करना होता है हमें, पर्टिकुलर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट, आपका बर्थ डेट एंड ईयर जो भी आप का है पर्टिकुलरली। सो आई विल पुट अप नेक्स्ट, जेंडर सिलेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट प्रोसीजर, आपका ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना है। जो रिस्पेक्टिव गूगल अकाउंट का ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। एंड ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप आइदर इसे चूज करें या फिर नहीं। मैं तो इसे चूज करूँगा, जस्ट कि जो भी स्क्रैच टीम से मेल्स अनदर प्रोजेक्ट्स वगैरह है आइडियाज़ वो आपके साथ शेयर होते जाते हैं थ्रू योर ईमेल अकाउंट। एंड ये फाइनल स्टेप होने के बाद हमारा अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। आई होप यू गाइज हैव ऑल्सो क्रिएटेड योर अकाउंट एंड हम अभी स्क्रैच की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें अभी क्या करना है, हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। सो द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स गाइज, आपके लिए मैं वेट करूंगा ताकि आप भी अपना अकाउंट ओपन करके साइन इन करके प्रोजेक्ट क्रिएट करके विंडो ओपन हो आपके स्क्रीन पे। जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स आई विल वेट। सो दिस इज व्हाट, हमारा ये स्क्रीन दिखता है इस तरीके से। द फर्स्ट पॉइंट यहां पे है ये ऊपर का पूरा सेक्शन एंड इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार। आई रिपीट, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज हम इसे बोलते हैं मेन्यू बार, जिसमें क्या क्या ऑप्शंस है। लैंग्वेज सिलेक्ट करना, फाइल,
फाइल में अलग अलग ऑप्शन है, एडिट, ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे अलग अलग ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेम जो भी आप सेव करेंगे वो अपीयर होगा। सो फाइल ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शंस क्या है, न्यू, क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, उसे सेव करना। एंड अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको कुछ एडिटिंग करना है, सो आपको क्या करना है, जस्ट लोड योर फ्रॉम योर कंप्यूटर। सो बिफोर मूविंग गाइस, एक आपको एज अ हिंट कि हमारा कैसे आउटपुट दिखेगा, ऑलरेडी आई हैव वर्कड अ लिटिल बिट ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो मैं लोड करके आपको उसका एक जस्ट अ मोमेंट बता देता हूँ कि वो कैसे हमारा आउटपुट विंडो होगा। सो मैंने ये जस्ट सेव किया था ये नाम से, ओके। अब वो मेरा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, तो इस तरीके से वो मेरा प्रोजेक्ट था। एंड क्विकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कंट्रोल पे क्लिक करूँगा ताकि आपको आउटपुट दिख सके, एंड ये फ्लैग को प्रेस कर दूंगा। दैट मीन्स व्हाट, हमारे अर्थ पे अभी 1 बाय 1 ये कोरोना डिटेक्ट हो रहा है, एंड हमें क्या करना है, उसे पूरी तरीके से मिटा देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमें हमारा गेम कैसा डिज़ाइन करना है। सो ऑल दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। फॉर दैट मैं न्यू फाइल सिलेक्ट करूँगा ताकि हम सब स्टार्ट से कर सकें। सो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, बिफोर दिस मैं ये पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पूरा मोशन ब्लॉक्स है, ये पूरा मोशन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं, ये टूल बॉक्स रहता है जहाँ पे ये अलग अलग मोशन बॉक्स दिए गए हैं, एंड इसका यूज़ करके आपको कोड करना है। कोडिंग जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग, अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए। एंड ये जो पूरा ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा ब्लैंक एरिना मैं जिसे बोलता हूँ, इसे हम बोलते हैं वर्क स्पेस, जहाँ पे आपका पूरा कोडिंग पार्ट आएगा। जो भी आप कोडिंग पार्ट में इम्प्लीमेंटेशन करोगे, एग्जीक्यूशन करोगे, उसका आपको रिजल्ट, ये स्टेज यानी कि ये आउटपुट विंडो भी बोला जाता है, यहाँ पे आपको दिखेगा। यह आउटपुट विंडो पे जो भी आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसका नेम, डायरेक्शंस एंड द साइज, मेरे ये पूरे कमांड से कंट्रोल होता है। जैसे कि अब 0 है, मैंने ये कैट को नीचे प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो आप देख सकते हो तुरंत मेरे एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। अगर मैं इसे मिडल में लाता हूँ तो वापस इसके चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। बट हमें कैट स्प्राइट की ज़रूरत नहीं है। एंड द वन थिंग यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लेने वाले हैं उसे हम स्क्रैच में स्प्राइट के नाम से डिफाइन करते हैं। वी कॉल इट एज अ स्प्राइट। फिर वो स्प्राइट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने अगर इसको अभी फॉर एग्जांपल कैट लिख दिया तो मेरा स्प्राइट का नेम चेंज होके कैट हो गया। ओके गाइस, आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन विल बी क्लियर। प्लीज पुट अप इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, अब कैट की ज़रूरत है नहीं हमें, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। एंड व्हाट आई विल डू इज, मैं नया स्प्राइट यहां से सिलेक्ट करूंगा। सो फॉर दैट आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन एज चूज अ स्प्राइट। एंड अगर आप प्रेजेंटेशन में देखोगे हमारे आउटपुट विंडो में, तो टोटल हमारे कितने स्प्राइट्स है, 1 2 3। कन्फर्म? रॉन्ग, हमारे 4 स्प्राइट्स है। द फोर्थ स्प्राइट विल बी जो हमारा बुलेट ये रॉकेट से निकल रहा है, वो भी एक प्रकार का स्प्राइट ही है। सो टोटल हम कितना 4 स्प्राइट्स यूज करेंगे।
So the first sprite we are going to use is रॉकेट. रॉकेट आप टाइप करोगे और इसे सिलेक्ट कर लोगे. द वेरी फर्स्ट स्प्राइट. यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स में जाके आप देखोगे तो अलग अलग रॉकेट के टाइप्स आते हैं. तो मैं ये बाकी के टाइप्स को डिलीट कर दूंगा बिकॉज आई हैव नो यूज़ ऑफ दिस. हमें कुछ भी उसका यूज़ नहीं होने वाला है. जस्ट ये स्प्राइट को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, बस दैट्स इट. कोड, दैट्स इट. अब मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करके देखूंगा कुछ होता है क्या. फाइन. 180 डिग्री. आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो डायरेक्शंस में. एनी इधर आप क्या कर सकते हो, आप यहां से भी उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. इसको पूरा सिलेक्ट करके ये जो कमांड है यहां से भी आप उसका डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो. फाइन. सो नेक्स्ट हमारा स्प्राइट नंबर 2, जो बुलेट हमें यूज करनी है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ बॉल. बॉल की तरह वो दिखता है. साइज हम इसका छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं. एक बार फिर कॉस्ट्यूम्स में जाके हम रेस्ट ऑफ द पार्ट को डिलीट कर देंगे एंड इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड साइज का छोटा कर देंगे. फाइन. फिल ऑप्शन में हम कलर चेंज करेंगे. इस तरीके से आप कर सकते हो. वट एवर कलर आपको जो भी पसंद है. आई विल कीप दिस एज रेड ऑरेंज मिक्स. ओके. सो आई विल वेट सम मोर टाइम ताकि आप यहां तक आ सको. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे रॉकेट को ले लिया. देन सेकेंड बुलेट को ले लिया. तो इसे भी आप चेंज करके बॉल के जगह बुलेट कर सकते हो. स्प्राइट नंबर 3, द मेन स्प्राइट, दैट इज अ कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. मेरे पास जितने भी स्प्राइट्स है उसमें अवेलेबल नहीं है. बट स्क्रैच में मेरे पास एक ऑप्शन है अपलोड का, जहाँ से मैं अपना स्प्राइट जो डाउनलोडेड है मेरे सिस्टम में, वहाँ से मैं उसे अपलोड कर सकता हूँ. सो अपलोड स्प्राइट, ये वो फाइल है. ओके. इसका भी मैं साइज एंड ऑल पूरा अच्छे से सेट कर दूंगा, बट उसके लिए सबसे पहले वेक्टर मोड में उसे कन्वर्ट करना होता है हमें. एंड देन सिलेक्ट इट. साइज अकॉर्डिंग टू यू, आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे. इसको आप मूव ऑन भी कर सकते हो. वंस आपने इसके कोडिंग के टाइम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पुट अप कर दिए, देन ये परफेक्ट पोजीशन में आता है. देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्प्राइट, अर्थ. इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक शेप में लेके आके एक परफेक्ट पोजीशन पे सेट कर दूंगा. तो धीरे धीरे मैं इसे लेफ्ट में मूव करते जाऊंगा ताकि ये लेफ्ट में मूव होते जाए. एंड जैसे हमारे आउटपुट इमेज में दिख रहा है वैसे मैं इसे मूव करते जाऊंगा. तो सबसे पहले थोड़ा साइज इसका मैं इंक्रीज कर दूंगा. ओके. एंड ये स्टेज विंडो से मैं इसे यहाँ पे मूव करते जाऊंगा कोड में जाने के बाद. तो आप इसको और
साइज बढ़ा भी सकते हो. आई विल वेट फॉर फ्यू मोर टाइम. मैंने सर को ऑलरेडी भेज दिया था व्हाट्सएप पे, यार बोला था शेयर कर दो सबको. ओके. सो हम अभी आगे बढ़ते हैं. अर्थ हो गया, हमारा कोरोना भी हो गया. इसे हम रिनेम कर देंगे 1 को एज अ कोरोना. बुलेट हो गया, रॉकेट शिप हो गया. सो नाउ आर टास्क इज कि हमें इसे प्रॉपर वे में कोड करना है. बट कोडिंग से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी थोड़ा मतलब आई एम थिंकिंग कि थोड़ा बैकग्राउंड भी एक अच्छा सेटअप हो. सो बैकग्राउंड के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल चूज अ बैकड्रॉप एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्टार्स. 2 ऑप्शन है, इधर गैलेक्सी या फिर स्टार्स. सो आई विल सिलेक्ट स्टार्स. ओके तो मैंने स्टार्स करके ऐसा एक बैकग्राउंड इमेज ले लिया. एंड डोंट वरी गाइस, ये हर एक जो स्प्राइट है उसे आप पर्टिकुलर साइज में लाके सेट कर सकते हो. तो रॉकेट का साइज मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है. सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल चेंज दैट साइज. तो मैं साइज चेंज कर दूंगा. हाँ यर सी. सो व्हाट यू विल डू, कंट्रोल Z. ये जो भी पार्ट्स है आप इसे डिलीट कर सकते हो ताकि कभी भी सिलेक्ट करते वक्त प्रॉपर इमेज सिलेक्ट हो. ओके सो आप देख सकते हैं ना, ये रॉकेट का प्रॉपर एरिया सिलेक्ट हो गया है. नेक्स्ट, सो नाउ हम मूव ऑन करेंगे हमारे कोडिंग पार्ट के लिए. सो सबसे पहला कोड हम जो करेंगे वो हमारे इस रॉकेट शिप के लिए होगा. आई होप यू गाइज हैव डन अप टिल नाउ योर. सो आई विल वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स ताकि हम साथ में कोडिंग स्टार्ट कर सकें. Till then I will just see anyone having any doubt or not. Okay fine. So now हम रॉकेट शिप के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोड. सबसे पहला कोड आपके स्क्रीन पे ये रहा. इवेंट्स पे क्लिक कीजिए एंड व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड, ये वाला जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए. अब आपको क्या करना है, कोडिंग में ड्रैग एंड ड्रॉप का पूरा गेम इस तरीके से सेटअप करना है. जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, बस दैट्स इट. जैसे जैसे हम कोड करेंगे वैसे वैसे मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते जाऊंगा. सो एट द टाइम ऑफ आउटपुट आपको पूरा समझेगा कि हमने पर्टिकुलर कमांड वो पर्टिकुलर प्लेस पे क्यों यूज़ किया है. सो ये ब्लॉक लेने के बाद हम कंट्रोल्स में जाके फॉरएवर ब्लॉक को लेंगे.
फॉरएवर ब्लॉक लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड ब्लॉक इफ देन ब्लॉक लेंगे हम। सबसे पहले हमने फ्लैग ब्लॉक लिया, फिर फॉरएवर और अब इफ। ओके, नेक्स्ट सबसे पहला कमांड हम लिखेंगे ये ब्लॉक में। उसके लिए हमें सेंसिंग में जाना होगा। सेंसिंग में जाने के बाद हम ये जो कमांड है की स्पेस इज प्रेस्ड, ये वाला लेंगे एंड इसमें हम उसे ड्रॉप कर देंगे। ओके, सो यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा राइट एरो। उसके बाद मैंने डायरेक्शन तो दे दिया रॉकेट को, राइट की तरफ जाना है, बट कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैसे दूंगा। सो उसके लिए आई विल सिलेक्ट मोशन और यहां पे मैं कमांड लूंगा चेंज एक्स बाय 4। ये 10 को मैं 4 कर दूंगा। सो दैट मीन्स आपका जो फ्लैग क्लिक होगा उसके बाद वो राइट में जाएगा। इस तरीके से आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब आप लेफ्ट की प्रेस कीजिए, अप की, डाउन की, कुछ भी प्रेस कीजिए, वो वर्क नहीं होगा, जस्ट आपका राइट की। रीजन कि हमने बाकी के कीज के लिए अभी तक एक भी कोडिंग की नहीं है, दैट्स वाई। मूविंग फॉरवर्ड वापिस हम सेम इफ देन ब्लॉक लेंगे फ्रॉम द कंट्रोल्स एंड दिस टाइम वी विल बी डिफाइनिंग about some different arrow and one thing, कहीं कहीं जगह पे यहाँ पे आपको ये गैप मेंशन करना होता है, अदरवाइज वो कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम वे मैं सेंसिंग में जाऊंगा, सेम कमांड एंड दिस टाइम मैं क्या करूंगा, मैं राइट के बदले लेफ्ट एरो लिखूंगा। नाउ आप क्या करोगे, मोशन में जाओगे, वापस सेम ब्लॉक एंड यहां पे आपको चेंज ये करना है, आपको इसको -4 करना है। रीजन, आपने ऑलरेडी राइट एरो को कमांड सेट कर दिया है +4। अब अगर आप लेफ्ट एरो को भी फॉर एग्जांपल +4 करते हो और जस्ट लेफ्ट एरो प्रेस करके देखो, फ्लैग क्लिक करके, आपका रॉकेट ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट बिकॉज वो हमें कहना चाहता है कि एक बार हमारा कोऑर्डिनेट सेट होने के बाद हम वो कोऑर्डिनेट अगर दूसरे को लेते हैं तो जो भी फंक्शन हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो रीज़न इज आपको चेंज करना होगा आपका कोऑर्डिनेट। अब आप फ्लैग प्रेस करके देख सकते हैं, इट विल बी बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। फाइन, इस तरीके से हमने लेफ्ट एंड राइट के लिए लिख दिया है। नाउ अप एंड डाउन के लिए माय क्वेश्चन इज, अप एंड डाउन के लिए हमें क्या करना होगा। ये तो सेम होगा कि जस्ट अप एंड राइट एरो ही आएगा वहां पे, बट व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट में चेंजेस आएंगे या नहीं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, ये मेरा इफ ब्लॉक एंड जो की है ये पूरा प्रोसीजर सेम ही होगा, जैसे यहाँ पे मैं अभी लेफ्ट के बाद अब अप एरो कर दूंगा, बस दैट्स इट। बट ये जो कोऑर्डिनेट है, जो एक्सिस मुझे एक्सिस यहाँ पे यूज़ करना है, वो मेरे एक्स एक्सिस ही रहेंगे या वाई। इट विल बी वाई एक्सिस, बिकॉज मुझे अप एंड डाउन यहाँ पे इस बार मेरा पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया है, मेरा जो लेआउट है वो चेंज हो गया है, मुझे ऊपर नीचे करना है। एंड फॉर अप एंड डाउन वी चेंज द वाई कोऑर्डिनेट्स। अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो हम चेंज करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स। ऑलवेज ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए, जब भी आपको लेफ्ट से राइट जाना है आपको एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है एंड अप एंड डाउन के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है वाई कोऑर्डिनेट्स।
सो मूविंग ऑन गाइस, यहाँ पे हम करेंगे इफ ब्लॉक अगेन वापस। सेंसिंग में सेम, इस बार मैं करूँगा अप एरो एंड मोशन से आई विल सिलेक्ट चेंज y बाय, ये x था, अभी हम y वाला लेंगे। वो काउंट सेम रखना है 4। नेक्स्ट अगेन कंट्रोल फॉर द लास्ट टाइम, इफ ब्लॉक हम यूज करेंगे। अब आपको अगर लगता है आपको शॉर्टकट्स यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जस्ट आपका माउस पॉइंटर यहाँ पे लाके आप जस्ट राइट क्लिक कीजिए। सो डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है। सो ये डुप्लीकेट मतलब वापस रिपीट होता है। एंड दिस सम सॉर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क और अ शॉर्टकट आई कैन से, एंड जस्ट चेंज इट टू डाउन। जस्ट यहाँ पे आके राइट क्लिक कीजिए। सो अगेन मोशन, एंड इसके लिए भी मैं y का कोऑर्डिनेट सेट कर दूंगा। दैट इज -4। अब ये तो हो गया कमांड। लेफ्ट एंड राइट आप फ्लैग प्रेस करके एक बार चेक कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट। आई विल स्टॉप दिस। अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट कमांड होगा सबसे पहले रॉकेट में ही रिगार्डिंग द बुलेट हम कमांड को रिप्रेजेंट करेंगे। सो फ्यू सेकेंड्स के लिए मैं वेट करता हूँ ताकि आपका ये कोड फिनिश हो सके। फॉर 5 सेकेंड्स आई विल बी वेटिंग। आई होप यू गाइज आर डूइंग, आप मेरे साथ कर रहे हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैं लूंगा सेम व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड, फॉरएवर ब्लॉक, बिकॉज ये जो भी कमांड्स मुझे करने हैं, जो भी हमें एग्जीक्यूशन करना है, आई वॉन्ट टू कीप इट फॉर एवर, नॉट फॉर जस्ट वन टाइम। अगर वन टाइम करना है देन आप ये रिपीट वाला ब्लॉक इसको 10 के लिए 1 कर सकते हैं, मतलब एक बार के लिए वो रिपीट होगा, बस दैट्स इट। नेक्स्ट इफ देन ब्लॉक, यहाँ पे आप ये जो सेंसिंग में ये जो कमांड है उसको वैसे के वैसे ही रखोगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ओके हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम स्पेस ही रखेंगे, बिकॉज मेरे को एग्जैक्टली उससे आउटकम क्या चाहिए कि जब भी मेरा स्पेस बार प्रेस हो मेरा रॉकेट से बुलेट फायर हो टुवर्ड्स दैट कोरोना। सो उसके लिए मुझे स्टेटमेंट का यूज करना है, इवेंट्स, एंड आई विल यूज द स्टेटमेंट एज by going into the control create a clone, ये मैं स्टेटमेंट लूंगा यहाँ पे एंड इसे रीनेम कर दूंगा मैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, मतलब रॉकेट से जब आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो क्या होना चाहिए, बुलेट ही चाहिए मुझे, बट ऑब्वियस फ्लैग को क्लिक करके एक बार चेक कीजिए। ओके इसे मैंने रीनेम किया है बुलेट, सो बुलेट ही होगा। जब तक आगे की कंडीशंस आपने एग्जीक्यूट नहीं किए पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसके बीच में हम डिले डाल देंगे। सो फॉर डिले कंट्रोल्स में वेट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एग्जैक्टली इसके नीचे। सो हम वेट करेंगे 0.3 सेकेंड्स के लिए। ओके अब हमारा रॉकेट का कोड यहाँ पे खत्म होता है।
Now moving on towards the bullet. The first code. बुलेट के लिए फर्स्ट कोड, हमेशा हमारा फर्स्ट कमांड कांस्टेंट होगा एंड दैट इज व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड. ये मतलब जब भी आपका फ्लैग प्रेस होगा आउटपुट विल बी स्टार्टिंग. एंड स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा बुलेट है उसे हाइड करना है, वो दिखनी नहीं चाहिए. सो उसके लिए मैं लुक्स में जाऊंगा एंड आई विल सिलेक्ट द कमांड हाइड. तो आप देख सकते हो अभी हाइड हो गया. अब अगर मैं यहां पे हाइड की जगह शो लिखता हूं, दैट्स अ मैजिक. सो मुझे अभी जरूरत है हाइड कमांड की, सो आई विल टेक दैट एंड आई विल हाइड इट. एंड यहां पे हमने लिखा था कि क्रिएट अ क्लोन ऑफ बुलेट. मतलब क्लोन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, रिपीटेशन, सेम वे में, सेम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, बॉल का रिपीटेशन सेम वैसे के वैसे. सो उसके लिए क्या होगा, इवेंट्स के बाद कंट्रोल में फर्स्ट कमांड व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन. जब भी मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे अब हम हाइड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे शो. मीन्स व्हाट, जब भी मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा मेरा बुलेट पास होना चाहिए. सो फॉर दैट लुक्स में अनदर ऑप्शन शो, इस तरीके से. एंड आप फ्लैग प्रेस करते हो तो हाइड हो जाता है. सो द नेक्स्ट कमांड के लिए हमें जाना होगा मोशन में, गो टू ब्लॉक. बट यहां पे गो टू ब्लॉक लेने के बाद, आई विल वंस अगेन रिपीट, गो टू ब्लॉक लेने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे व्हाट, रॉकेट शिप. मीन्स व्हाट, मैं बताता हूं. ये कमांड हम ले लेंगे, गो टू रॉकेट शिप. इसके बाद हम कमांड लेंगे पॉइंट इन द डायरेक्शन वाला कमांड. ओके, सो यहां पे मैं डायरेक्शन में 90 की जगह डायरेक्शन पुटअप करूंगा. अब मुझे क्या करना है, माई डायरेक्शन शुड बी टूवर्ड्स मेरा रॉकेट शिप. मतलब रॉकेट शिप से वो डायरेक्शन स्टार्ट होना चाहिए. ओके, अगर मैंने इसे वापस यहां पे लेके देखा तो नहीं, प्रॉपर नहीं बैठ रहा है. दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट. सबसे पहले हम क्या ऐड कर देंगे, मूव ये, एंड आई विल मेक दिस 20. दैट मीन्स व्हाट, मेरा जो बुलेट है वो 20 स्टेप्स में, फॉर मतलब 20 स्टेप्स मतलब उतना 20 टाइम्स वो चलते जा रहा है, आगे आगे जाते जा रहा है वो. ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर रहा हूँ आपका, तो आप यहाँ तक कोड कर सको.
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स में जाके रिपीट अंटिल ब्लॉक लेंगे, ये रिपीट अंटिल ब्लॉक। अब क्यों ले रहे हैं इसका हमें आगे पता चल जाएगा। यहां पे सबसे पहले हम करेंगे ऑपरेटर्स, उसके लिए और ब्लॉक आई विल सिलेक्ट, लेफ्ट साइड पे मैं पहले कमांड करूंगा, उसके लिए मुझे जाना होगा सेंसिंग में, टचिंग द दिस थिंग। आप इसको अच्छे से बाहर लाके भी सेट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे नहीं जम रहा है तो, ओके, एंड देन पुट इट ओवर हियर। वैसे ही मैं राइट साइड पे भी सेम कमांड पुटअप करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा टूवर्ड्स द एज, एंड यहां पे लिखूंगा मैं कोरोना। मतलब टूवर्ड्स द कोरोना वो पुटअप होगा, जब तक कोरोना आते जाएगा तब तक वो टूवर्ड्स द कोरोना, उसका एज मतलब कोरोना का एज, तब तक वो बुलेट हमारा वहां तक फायर होते जाएगा। उसके बाद सेम मूव स्टेप्स वाला ब्लॉक लेंगे हम, मूव 15 स्टेप्स, एंड ये ब्लॉक हमें क्या कहना चाहता है कि अगर हमारा कोरोना टच हो गया मेरे इस रॉकेट शिप को, दैट मीन्स माई गेम इज ओवर। सो उसके लिए मैं लूंगा कंट्रोल्स में डिलीट दिस क्लोन ब्लॉक, दैट मीन्स जब भी मेरा कोरोना टच हो रहा है मेरे इस रॉकेट को, डिलीट दिस, दैट मीन्स द गेम इज एंड। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें हमारे इस कोरोना के लिए कोडिंग करना है। आई होप यू गाइज आर डूइंग विथ मी। आपको जो भी डाउट्स रहेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्लियर कर देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा हूँ ताकि आपका ये पूरा कोड खत्म हो जाए। Fine, let's move on for the corona code। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एज यूजुअल व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड, हाइड। सेम जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट ये बुलेट के लिए हमने यूज किया था, सेम वे हमें इसके लिए भी करना है, कोरोना के लिए भी। हाइड, सो एक क्विक रिकैप मैं कर देता हूं अब तक हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने रॉकेट शिप अलग अलग बुलेट्स लिए, रॉकेट शिप, बुलेट, कोरोना, अर्थ, ऐसे अलग अलग स्प्राइट्स। हमने उसके लिए साइज एंड ऑल अच्छे से सेट किया। देन हमने बैकड्रॉप ले लिया। बैकड्रॉप लेने के बाद हमने कोडिंग स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने रॉकेट के लिए कोडिंग कर दिया इस तरीके से। रॉकेट के लिए कोडिंग करने के बाद हमने बुलेट के लिए कोडिंग कर दिया। उसके बाद हम अभी कोरोना के लिए कोड कर रहे हैं। सो द
फॉरएवर ब्लॉक यहाँ पे लेंगे हम। उसके बाद कंट्रोल्स में ही वेट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सम, सो मैं इसे 2 सेकेंड्स कर दूंगा एंड वापिस सेम प्रोसीजर, क्रिएट अ क्लोन, बिकॉज मुझे कोरोना बार बार आते हुए दिखना चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस कंट्रोल ब्लॉक आपका है वो कमांड, क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, ये कमांड होने के बाद सबसे पहला फर्स्ट कमांड होगा कि जब मेरा क्लोन स्टार्ट होगा, सो I want to show here something that is known as variable। तो मैं यहां पे सेट कर दूंगा, रीनेम करके नेम एज लाइफ एंड इसे मैं 2 कर दूंगा। दैट मीन्स कोरोना की लाइफ 2 होगी। जब उसे एक बार शूट करेंगे तो 1 पे आ जाएगी एंड देन इट विल बी डिलीटेड। अगेन शो, बिकॉज हमने हाइड किया था उसे, तो उसे अभी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें शो ब्लॉक यूज करना होगा। देन अ नेक्स्ट कमांड विल बी मोशन में जाके गो टू ब्लॉक। तो यहां पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा 250 पे, बट मुझे y के लिए चेंज करना है। सो y के लिए मैं करूंगा ऑपरेटर्स में पिक अ रैंडम एंड -170 से +170 तक, ये डायरेक्शन में वो कोरोना आते जाते रहेगा। उसके बाद हम लेंगे फॉरएवर ब्लॉक, इसमें हमारा पहला कमांड होगा मोशन में पॉइंट टूवर्ड्स, मतलब मेरा पॉइंट टूवर्ड्स क्या रहेगा, कोरोना किसकी तरफ पॉइंट करेगा, रॉकेट शिप की तरफ, मतलब इस रॉकेट की तरफ जहां से उसे शूट हो रहा है। एंड आई विल मूव 1 स्टेप, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। अब मैं यूज करूंगा इफ ब्लॉक। वाई हमें पता चलेगा यहां पे एग्जैक्टली इसके नीचे। अब मेरा कमांड क्या है, अगर वो बॉल को टच होता है कोरोना यानी कि बुलेट को, सो उसका लाइफ कम होना चाहिए। सो फॉर दैट सेंसिंग टचिंग द बुलेट, देन वेरिएबल्स में चेंज बाय लाइफ बाय -1। ओके, कम हो गया उसका लाइफ, 2 था उससे माइनस पे आ गया। एंड जब आप शूट कर रहे हो, जब भी आप शूट कर रहे हो इस तरीके से, तो उसका एक ब्राइटनेस इफेक्ट दिखना चाहिए वहां पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्राइटनेस इफेक्ट को सेट करेंगे। सेट द कलर इफेक्ट, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ब्राइटनेस, एंड ये जो इफेक्ट है मैं इसे 100 कर दूंगा। ओके, आई विल वेट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बाय गोइंग इनटू द कंट्रोल। 1 सेकेंड वेट करने के बाद दोबारा मैं ब्राइटनेस के लिए मूव ऑन करूंगा, यानी कि वो डिलीट होने के बाद उसका ब्राइटनेस मतलब कुछ भी दिखता ही नहीं है वहाँ पे। सो आई विल सेट दैट ब्राइटनेस टू 0, दैट्स इट।
अब हमने डिसाइड तो कर दिया कि जब भी आप प्रेस करोगे तो लाइफ उसकी कम होते होते जाएगी, ब्राइटनेस हमें दिखेगा। मैं यहाँ पे अभी कंडीशन क्या मेंशन करना चाहता हूँ कंट्रोल्स के लिए, इफ देन ब्लॉक। यहाँ पे ऑपरेटर्स में लेस देन ब्लॉक लूंगा मैं, कोरोना की लाइफ 2 पे थी, पहली बार हिट किया -1, सेकेंड टाइम हिट किया इट्स डेड, +1 ओके, फिर डेड। दैट मीन्स वॉट, मैं उसके लिए पहले वेरिएबल क्रिएट करूंगा, ये लाइफ। हाउ टू मेक अ न्यू वेरिएबल लाइफ। अब ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है तो वहाँ पे ऐसा आता है, तो आपके यहाँ पे नहीं होगा वो, जस्ट बिकॉज आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो। मेरा अगर लाइफ लेस देन 1 है, सो दैट मीन्स इट इज डे, मैंने उसे वैनिश कर दिया है। सो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा डिलीट दिस क्लोन, ओके। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा साउंड भी यूज करूंगा। सो फॉर दैट गो टू साउंड्स, यहाँ पे साउंड को चूज करो पियानो। दैट मीन्स व्हाट, जब भी आपका बैक टू द कोड, यहाँ पे साउंड्स में जब भी आपका वो डिलीट होने के मोड पे है, आपका ये साउंड होगा, साउंड बजेगा। एंड ये यहाँ पे सेट कर दीजिए। एंड एक और कमांड के लिए मैं कंट्रोल्स में इफ देन ब्लॉक लूँगा एंड उसको यहाँ पे प्लेस करूँगा। एंड मुझे क्या कहना है कि जब भी मेरा कोरोना टच हो इस रॉकेट को, डिलीट दिस स्टॉप ऑल, आई एम सॉरी स्टॉप ऑल आएगा वहाँ पे। सो उसके लिए हमें आएगा सेंसिंग में सेम टचिंग द माउस पॉइंटर, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा रॉकेट शिप, यानी कि मेरा स्प्राइट 1। देन कंट्रोल्स में स्टॉप ऑल, दैट्स इट, ओके। तो इस तरीके से आप मूव ऑन भी कर सकते हो। तो जैसे ही कोरोना आपका साउंड बज रहा है, द मोर यू डू दैट, एंड फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे ही रख दिया इसको, आप अनेबल हो गए एंड ये आके आपको अभी टच हो रहा है, तो यहाँ पे आपका गेम स्टॉप हो जाएगा। फिर अर्थ के लिए हम कुछ भी कोडिंग नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे आपके लिए वेट करता हूँ ताकि हम आगे का थोड़ा प्रोसेस कंप्लीट कर दें। सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, ताकि हम लास्ट पार्ट पे फिर मूव ऑन हो। कोरोना के लिए थोड़ा कोड बड़ा था, बाकी इन टर्म्स बाकी के लिए कोड थोड़ा छोटा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनटाइटल्ड है, तो जब भी आप सेव करोगे इसे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा। जैसे कि ना फॉर एग्जांपल अभी हम सेव करके देखते हैं, फाइल सेव टू योर कंप्यूटर,
ये सेव हो गया। अगर हम जस्ट सेव एज अ कॉपी करते हैं, सो इट इज सेव्ड एज अ कॉपी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका अभी ये नेक्स्ट टाइम आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आपको दिखाना है कि वो कोरोना पूरी तरह से डिलीट हो गया, तो थोड़ा एडिटिंग करना है, तो आपको वापस फाइल ओपन करना है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए मैं अभी सेकंड फाइल ओपन करके देखता हूँ। लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, एंड जैसे मैंने मेरे में सेव करके रखा था ये नाम से, यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करोगे तभी आपका वो प्रोजेक्ट लोड होगा, और इस तरीके से वो प्रोजेक्ट आते जाएगा। तो इस तरीके से आप हटा सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, आप इसमें रख भी सकते हो, आपकी ओरिजिनल फाइल जो है उसे लेके आ सकते हो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जो ब्लॉक्स का यूज़ नहीं है उसे हम हटा सकते हैं। अब ये वेरिएबल में मैंने ज़ूम भी लिया था, तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। सो कोरोना के लिए मूव करने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रीनेम दिस वेरिएबल एज लाइफ। तो ये लाइफ हो गया। सो एट द एंड व्हाट वी विल सी नाउ, वी विल क्विकली सी द आउटपुट, ताकि हम हमारे लास्ट पार्ट पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने फ्लैग प्रेस कर दिया, अब कोरोना का आना चालू हो गया। अब यहाँ पे आप नीचे मूव कर दीजिए। ओके, हुआ कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज वो कोरोना ने आपको टच कर दिया था। बिफोर दैट यू हैव टू हिट इट। अब इसमें आप एडिटिंग क्या कर सकते हो, इसको स्टॉप करके यहाँ पे आप साउंड डाल सकते हो, जैसे मैंने कहा था। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए पॉप साउंड डाल दिया, एंड जस्ट इसका एक वेरिएशन हम चेक करते हैं कि कैसे आता है। ओके, लाइक दिस, मतलब फर्स्ट टाइम हिट हुआ, सेकेंड टाइम हिट हुआ, हो गया। फर्स्ट टाइम हिट हुआ, सेकेंड टाइम हिट हुआ, लाइफ कम हो गया, लाइक दिस। So like this guys, you can make more innovative projects on Scratch. And once again I'm repeating, 25th यानी कि this Saturday also we are coming with some new interesting session. Same time at the same place. Okay, so let's move on to the comment section. सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड। आपको अच्छा लगा सेशन। यहाँ पे हमने ले लिया था इस तरीके से, तो हम इसे एक दोबारा सेव करके देखते हैं। यहाँ पे ये सेव हो जाता है। सेव एज ए कॉपी भी हम कर सकते हैं।
अब आप शो इन फोल्डर करोगे तो आपको वो फोल्डर में पर्टिकुलरली जहाँ पे भी सेव हुआ है वहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे। एंड जब भी आप स्क्रैच सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तभी ही वो आपको वैसे पर्टिकुलर फॉर्म में दिखेगा। सो मैं ये प्रोजेक्ट को लिंक आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। ओके, मैंने ये लिंक यहाँ पे डाल दिए तो कि ताकि आप इसे प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं एनी टाइम व्हेन यू वांट। ओके, एंड रिमेंबर इट्स scratch.mit.edu एज रितेश सर सेड। इसे हम इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड अ लॉट, आपने कुछ सीखा। एंड द लास्ट पार्ट, द टास्क फॉर यू गाइज इज, इसी तरीके से आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एंड आपको उसके यूज़ अलग अलग और ब्लॉक से यूज़ करके उसमें क्रिएटिविटी लानी है। And also with some more new interesting and best game, we will be coming back in the next session. Till then guys, main thing, lockdown चालू है, so please stay at your home, maintain a social distancing, and whenever if emergency you are moving out, please wear mask and sanitize your hands. Reena ma'am, since the bullets are coming from the center, because we have mentioned that particular position of the rockets. Okay, so I hope your doubt has been cleared. Till then, stay tuned guys. Thank you and bye bye.